سانحہ جلیانوالہ باغ کو 100 سال مکمل ہونے پر لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملکہ الزبتھ دوم سمیت برطانوی حکومت سے عام معافی کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات لندن سے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں۔ بھارتی شہر امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں 100 سال قبل آج ہی کے روز 13 اپریل کو انگریز سامراج سے آزادی مانگنے والے ہزاروں افراد پر بارود برسا کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں سکھ کمیونٹی خصوصاً اس روز ہر جگہ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہے۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں اسی دن کی مناسبت سے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سکھ کمیونٹی کے مرد و خواتین نے شرکت کی۔ IWA اور غدر انٹرنیشنل کی جانب سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے برطانوی حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندان آج بھی اس دہشت ناک کارروائی کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ برطانوی حکمرانوں کی طرف سے کبھی اس قتل و غارت پر افسوس تو کبھی شرمندگی جیسے الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن کبھی معافی نہیں مانگی گئی۔ نعرہ دے رہا سی بھی انگریز سامراج نو بچاؤنا چاہیے۔ وہ کہندا مینوں کوئی فرق نہیں پیندا کہ ساڈے کنے نوجوان ودیا تو ودیا مارے جان، پر انگریزاں دی جڑی ہے اپنے راج ہے اینوں بچاؤنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ بھرتی کراؤن لئی اوتھے آیا، ساؤتھ افریقہ تو انہوں لیا گیا خاص کر کے انگریزاں نے، تے وہ نعرہ دیندا سی انہوں بچاؤن دا۔ برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے چند روز قبل اس سانحے کے 100 سال مکمل ہونے پر افسوس کا اظہار کیا تھا، تاہم معافی نہیں مانگی۔ اس موقع پر شرکاء نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نو آبادیاتی دور میں برطانوی سرکار نے برصغیر کے رہنے والوں پر سخت ظلم ڈھائے، جس پر برطانیہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ جگر ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਗਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਹੈਡਸ ਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਲਸਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੋ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਅਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੇਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। आज हम इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ मुस्लिम सिख कम्युनिटी एक साथ है, और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इस वाक़या को इतने अरसा हो चुका हुआ है और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको असूली तौर पे एक माफ़ीनामा पेश करना चाहिए, ताकि ये तारीख़ में ये बात आ जाए कि ये मुसलसल जितनी भी कत्ल व गारत हुई है कॉलोनियलिज़म में, इसकी जो इसी साल हो ताकि इसकी भरपूर मजम्मत की जाए और मलका बरतानिया इसकी माफ़ी मांगे। 100 साल हो गया उस साका बीते ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇਗੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। کہا جاتا ہے سانحہ جلیانوالہ باغ کو ہندوستانیوں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ اس واقعے کے بعد برطانوی راج اور ہندوستانیوں کے درمیان نفرت کی خلیج میں اضافہ ہوا اور ٹھیک 28 سال بعد انگریزوں کو ہندوستان سے کوچ کرنا پڑا۔ سانحہ جلیانوالہ کو 100 سال مکمل ہونے پر لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں
एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया। शुरा ने बरतानवी हुकूमत से यह मुतालबा किया कि वो सिख कम्यूनिटी से इस साने पर माफ़ी मांगे। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में निजी फलाही इदारे के ज़ेर-ए-एहतमाम चैरिटी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी ने गरीब और नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब का अहवाल आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कश्मीरी हमेशा अपने वतन के नादार, यतीम और गरीब लोगों की माली इमदाद के लिए पेश रहते हैं। इसी गर्ज से ज़ाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमदाद जमा करके मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरीब बच्चों को आला तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए फंड रेजिंग डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुखय्यर हजरात ने शिरकत करके 400 नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर फलाही इदारे के चेयरमैन बैरिस्टर अब्दुल कय्यूम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर चौधरी जफर इकबाल, आसिया हुसैन और दीगर खवातीन और हजरात ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। continue happening in the future. They are actually very, very good and we understand more about what's happening and how things are progressing. इनका जो 4th स्कूल है पाकिस्तान में बुन खुरमा में, वहाँ पे ये 3 बच्चों को सपोर्ट करती हैं, खाना कपड़ा हर चीज़ ये वहाँ पे देती हैं, तो हम इनको सपोर्ट करने में यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। तालीम और तरबियत देनी वो माशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो रहा है और माशाल्लाह उस लिहाज में 4 स्कूल खोले हैं और दिन ब दिन तरक्की हो रही है और हम कामयाबी की तरफ। For the children in Pakistan is very important, and for anyone who's watching and listening, if you could support the charity, we will be most grateful because it makes a huge difference, not just to this generation but generations to come. मैंने पिछले साल से ज्वाइन किया है। इनका जो 4th स्कूल है जो मियां ममर टाउन में है, वो मैं उसको लास्ट ईयर से सपोर्ट कर रही हूँ। वहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेज बच्चे हैं, कुछ ऑर्फन्स वगैरह हैं, तो उनको जो है हम फ्री खाना देते हैं, फ्री उनकी एजुकेशन, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ जो है ना ये सुपर चैरिटी हैंड जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। Education program for quite some many years now. So we believe that educating sort of disadvantaged children is a given right regardless of gender. So what we're doing is providing free education for eligible children in rural parts of Pakistan, and they are given sort of education in English, Arabic and Urdu under an Oxford syllabus. And what we're hoping to do with this is basically enable them to get onto the job market. हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं ये तालीम के हवाले से, जिसमें हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इकरा पढ़, और उसके हवाले से हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ये ना सिर्फ कि हमारी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में ये काम है, बल्कि हम सब लोगों को जो हम यूके में रह रहे हैं और कहीं भी रह रहे हैं, हमें इन चैरिटीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अल्लामा इकबाल स्कूल पाकिस्तान में है उनमें उन बच्चों को जो बच्चे इस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं, ना कि सिर्फ उनकी तालीम का ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनको यूनिफॉर्म और उनको किताबें, उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है। All the blessings that we've got in life really, and be able to help and support the next generation, particularly in Pakistan. It's a developing country. It's a country with so much potential, particularly within the female population, and it's definitely about time that we started giving them the attention that they deserve, so we can nurture the leaders of tomorrow and really make moves, within the future of Pakistan and go down in history for helping to support change. आज हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ का दिन है जी कि हम अपने मुल्क के लिए यहाँ बैठकर जो है वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी तलकीन हमें कुरान का जो पहला लफ्ज़ उतरा है इकरा पढ़, वहाँ से शुरू होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें मैसेज है वो भी कि तालीम हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क और हमारी कौम और हमारे जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी मीरास थी तालीम, उसको हमने छोड़ दिया है। हम पूरी दुनिया की कौमों में सबसे पीछे क्यों चले गए? इसलिए कि हमने कुरान के मैसेज को भी छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को भी छोड़ दिया। मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान में या पूरी अरब दुनिया में या मुसलमानों में आज भी अगर हम इस मीरास को, खोई हुई मीरास को हासिल करने की कोशिश करें, तालीम हासिल करने की कोशिश करें, तो इन अक़वाम आलम में नंबर 1 पे आ जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि अगर
अरबी ज़बान जानते होंगे तो इनके लिए काम के जो मौक़े हैं वो मिडल ईस्ट में काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरह से अंग्रेज़ी चूँकि इंटरनेशनल ज़बान है तो उस लिहाज से हम इन्हें इंटरनेशनल सिटीज़न बनाना चाहते हैं ताकि उनके जहन में ये हो कि वी बिलोंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन दैट रिस्पेक्ट। इस मौके पर मुकर्रिर ने खिताब करते हुए कहा कि फलाही अदारा गरीब और अमीर के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस मौके पर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील की कि वो अदारे की फलाही सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ऑपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बन ने विकीलीक्स के शरीक बानी जुलियन असांज को स्वीडन भेजने की हिमायत करती है। एक इंटरव्यू में जेरेमी कॉर्बन ने कहा वो इस बात के हामी हैं कि जुलियन को स्वीडन भिजवाया जाए ताकि वहां वो खुद पर लगे जिनसी ज्यादती के इल्जामात का सामना करें। जेरेमी कॉर्बन का कहना था कि उन्होंने जुलियन की अमेरिका को हवालगी और वहां तहकीकात का सामना करने की मुखालिफत की थी। कॉर्बन के बकौल ये असांज ही थे जिनकी वजह से इराक और अफगानिस्तान की असल सूरत हाल सामने आई। जुलियन असांज को 11 अप्रैल को लंदन में एक्वाडोर के सिफारत खाने से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें अमेरिका भिजवाने की चमगोइयां की जा रही हैं। लंदन में एक मुश्तबा शख्स ने अपनी गाड़ी यूक्रेनी सफ़ीर की गाड़ी से टकरा दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाक़या मगरबी लंदन में यूक्रेनी सिफारत खाने के बाहर पेश आया। जब पुलिस ने कार सवार मुलजिम को गिरफ्तारी देने का कहा तो उसने दोबारा यूक्रेनी सफ़ीर की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस पर पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी पर 10 से ज़ायद मरतबा फायरिंग की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि वाक़े को दहशतगर्दी के तनाजुर में नहीं देखा जा रहा। ग्लासगो में आज़ाद कश्मीर के शहर नक्याल के असिस्टेंट कमिश्नर राजा तारिक महमूद के एजाज़ में इशाया दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा भारत LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी करके इश्तियाल पैदा कर रहा है, जिसका पाक फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। स्कॉटलैंड की कारोबारी और समाजी शख्सियत राजा इकबाल ने आज़ाद कश्मीर के शहर नकियाल के एसी राजा तारिक महमूद के एजाज़ में ग्लासगो में एक पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब में ग्लासगो के काउंसलर्स बेली राजा हनीफ और शाहिद फारूक के अलावा सियासी शख्सियात चौधरी मजीद, राजा आबिद, राजा आमिर और चौधरी बशीर ने खसूसी शिरकत की। राजा तारिक महमूद ने इशाइया से खिताब में कहा, भारत आए रोज़ कोटली सेक्टर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए मासूम इंसानों पर गोलियां बरसाता रहता है। इसमें शक नहीं है कि जो विज़िट है इसमें बड़ी लर्निंग है। दुनिया ने जो है बड़ी तरक्की कर ली है और हमारा मुल्क जो है ये मोहताज है इस चीज़ का कि हम भी अपने रवैयों में तब्दीली लाएँ और अपने जो है ना वो सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमारा जो रोल हिस्सा बनता है वो हम अदा करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरा का कहना था कि पाकिस्तान से आई सियासी और सरकारी शख्सियात के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मुलाकातें बाहमी राब्ते का बायस बनती हैं। बाज़ औक़ात ये राब्ते पाकिस्तान में मसाइल के हल के लिए भी कारआमद साबित होते हैं। असल कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन, जिस पर लोग आके अपनी सियासत की बात भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं। और जहाँ तक ब्यूरोक्रेट का तल्लुक़ है, मेरा ब्यूरोक्रेट तो अपने तौर पर विजिट करने के आता है, वो अजीज़ों कारब के पास आता है, तो उनके जो अजीज़ कारब होते हैं फिर अपने दोस्तों को बुला लेते हैं। उनका इंटरेक्शन मेरा ख्याल है कोई बेनिफिट के लिए नहीं वो आते, वो तो अपने अजीज़ कारब से मिलने आते हैं। मेरे ख्याल में जो भी आता है दोस्त अहबाब से मिलने आते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लोगों का काम है। जब इधर आके इनको हमारे हार्ड वर्क ये सब देखते हैं तो इनको अंदाज़ा होता है भी हम कितनी मेहनत से काम करते हैं और फिर उनके दिल में हमारी जैसे अफसरान के दिल में हमारे लोगों की इज्जत बढ़ जाती है। तो ये मेरे लिए काफ़ी उनके हमारे फ्रूटफुल होते हैं। और इसके अलावा जो इधर के जो सिस्टम है इनको भी देख कर जाते हैं तो ये भी उनकी हमारे जो मसाइल होते हैं हम डिस्कशन करते हैं और मोस्टली जितने हमारे कश्मीर के लोग रहते हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। जब हम इनसे बैठते हैं इनकी इज्जत या अमीर भी इज्जत देते हैं। जब पाकिस्तान में जाते हैं तो अभी रिसेंटली हम पाकिस्तान से हो गए हैं तो हमें बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। तो जो हमें मसाइल हैं उनको कोशिश होती है कि सॉल्व करें। तो हमारा ये मकसद है जितने हमारे मेहमान होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, वो लोगों से बातचीत करते हैं, वो उनसे अपनी जो मुश्किलात हैं वहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान में, तो वो मुश्किलात जो उनसे डिस्कस करते हैं तो वो सरकारी लोग जानते होते हैं कि इनकी
प्रॉब्लम का हल क्या है, वो यहाँ भी बता देते हैं, वो आपका नंबर वगैरह या कॉन्टैक्ट दे जाते हैं तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसान होता है कि वो आप जब उनको मसला हो उनसे रब्ता करके अपने मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे जो बॉर्डर के हालात हैं वो इंडिया के साथ काफ़ी गंभीर चल रहे हैं और उसके हवाले से उन्होंने बताया कि वो हमारी कम्युनिटी उधर कितनी ब्रेव है और बहादुरी के साथ उधर हमारे लोग रह रहे हैं बॉर्डर पर। शुरका ने मजीद कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तवक्को है कि वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो। आज AC नकियाल राजा तारक महमूद ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में खुसूसी दौरा किया और कम्युनिटी के साथ गपशप की और अशाइये का अहतमाम भी यहाँ पे किया गया। कम्युनिटी का कहना था कि इस तरह जब सरकारी अफसरान या सियासी लोग हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मिलते हैं, वो उनको जानते हैं, उनको देखते हैं कि वो कैसे और कितनी मुश्किल से वो पैसा कमाते हैं और उनके साथ अपने ख्यालात एक्सचेंज करते हैं। और फिर जब इन लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को कोई मसला वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में या पाकिस्तान होता है तो उनसे रब्ता करने में भी आसानी रहती है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए एहतमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह ने रूसी और पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में तिजारत और सैर व सयाहत के फ़रोग़ के हवाले से आगाह किया। तफसीलात शाहिद घुमन की रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को में पाकिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार का इनेकाद पाकिस्तानी सफारत खाना मॉस्को के ट्रेड विंग सेक्शन के ज़रिए एहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत पाकिस्तानी सफ़ीर काजी खलीलुल्लाह ने की, जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को के सदर पेत्रोव जोर्गीविच बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। सेमिनार से खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान रूस के साथ दोस्ती और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम कर रहा है। Both sides are focusing on enhancing cooperation in the field of energy and signed an MOU on conducting feasibility study for a regional offshore gas pipeline in September 2018. This is in addition to the North-South gas pipeline agreement which was signed in 2015. It might be of interest to you to know that Pakistan has become an attractive destination for foreign direct investment in recent years. I wish to share some details with you in this regard. Number one, China-Pakistan Economic Corridor, which started in 2015 with projected investment of $46 billion, is being successfully built with commitments of now more than $60 billion from China. The ultimate objective of the corridor is to provide connectivity for regional prosperity, including to the SCO member states. चैम्बर ऑफ कॉमर्स मॉस्को के सदर पेत्रोव जोर्गीविच का कहना था, सेमिनार से पाकिस्तान में सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत से मुतालिक मुफीद मालूमात मिली हैं। इनकी मदद से पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी, तिजारत और सियाहत के नए मौके मुयस्सर आएंगे। तकरीब से पाकिस्तानी सफारत खाने में तैनात ट्रेड मिनिस्टर नासिर हामिद ने भी खिताब किया। उन्होंने पाक रूस तिजारती ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की। अटेंडीज़ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें मॉस्को में जो रीजन्स और रिपब्लिक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग थे, रशियन कंपनीज थी, फेडरल चैम्बर, बिजनेस रशिया, एक्सपोर्ट सेंटर रशिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव, और इसके अलावा हमने जो रशियंस ऑफ पाकिस्तानी रीजन यहाँ सेटल्ड हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी इनवाइट किया हुआ था। और सेमिनार के बाद देर बहुत इंटरेस्ट शो किया सारे पार्टिसिपेंट्स ने, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। फिर एक नेटवर्किंग लंच में जो रशियंस ऑफ पाकिस्तानी रीजन थे उनके साथ इन लोगों को हमने इंटरेक्ट करवाया ताकि और फर्दर इंफॉर्मेशन इनको मिल सके। मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान के एक्चुअल पोटेंशियल का और प्रोडक्ट्स का पता ही नहीं है, और दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसके बाद हम इसको
रूस के दूसरे बड़े शहरों में भी जाके क्रॉसनोदार, सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ भी करेंगे और इसको एक रेगुलर एक्टिविटी बताएंगे ताकि डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की पोटेंशियल के बारे में है, पाकिस्तान के बारे में आगाही को स्प्रेड किया जा सके रशियन बिजनेसेस में। आखिर में ट्रेड मिनिस्टर नासिर हामिद ने सेमिनार के इनेकाद में ताउन करने पर आल पाकिस्तानीज ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रूस के सदर खलील रहमान और शहजाद शेख का शुक्रिया अदा किया। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक नाइट क्लब पर फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें एक शख्स हलाक जबकि 3 जख्मी हुए हैं। विक्टोरिया पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मेलबर्न के डिस्ट्रिक्ट पैराहरन में वाक़े क्लब में पेश आया जिसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जहां 37 साला सिक्योरिटी गार्ड जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग एक SUV गाड़ी में सवार अफराद ने की जो वकूए से कुछ फासले पर जली हुई हालत में मिली है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अगर आप इस्तांबुल की सयाहत करने आ रहे हैं तो कश्ती के ज़रिए सफ़र का कम अज़ कम एक बार तजुर्बा ज़रूर उठाना चाहिए। आबनाए बास्फोरस को पार करते हुए ताज़ा तुर्क चाय का गर्म कप और साथ ही लजीज खमीरी रोटी समेत हो तो सफ़र का लुत्फ दोबाला हो जाता है। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में फीकस चाय का इस्तेमाल तुर्की में सबसे ज्यादा है, लेकिन तुर्क चाय दुनिया के दीगर इलाकों जैसी नहीं। ये चाय दुनलक में बनाई जाती है जो दरअसल एक दूसरे के ऊपर रखी जाने वाली 2 केतलियां हैं। तुर्क चाय से लुत्फानंदोज होने के लिए खास ग्लास होते हैं जो खुद भी फन का एक नमूना है। चाय के साथ रवायती खमीरी रोटी सिमत इसका मजा दुबाला कर देती है। ये अंदर से नरम मुलायम और ऊपर से कड़क होती है। इस पर लगे तिल के बीज इसे मजीद मजेदार बना देते हैं। थाईलैंड में आबी त्यौहार संगरान का आगाज हो गया। दारुल हुकूमत बैंकॉक समेत मुख्तलिफ शहरों में लोग एक दूसरे पर पानी फेंकने के साथ साथ मौसीकी पर रक्स करके मेले का मजा दोबाला कर रहे हैं। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। थाईलैंड में आबी त्यौहार सोनिग्रान का आगाज हो गया। मुनफरिद नोयत का ये त्यौहार 3 रोज तक जारी रहता है जिसमें गैर मुल्की सयाह दारुल हुकूमत बैंकॉक और दूसरे शहरों का रुख करते हैं और त्यौहार से लुत्फानंदोज होते हैं। इस मौके पर बैंकॉक में मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स के बाहर फवारे लगाए गए हैं। शहरी म्यूजिक की धुन पर रक्स करते हुए आबी गनू और छोटी छोटी बाल्टी के जरिए एक दूसरे पर पानी फेंककर त्यौहार का मजा दुबाला कर रहे हैं। थाईलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने थाई जुबान के लोगों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। खुशियों से भरा ये त्यौहार 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। दुबई में दिलकश म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार अताउल्ला ईसा खेलवी, आयमा बेग और उमैर जसवाल सूफी कलाम पेश करेंगे। इस सूफी शाम में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान समेत दीगर सूफी फनकारों को खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा। तफसीलात मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई सूफी रंग में रंगने जा रहा है। म्यूजिकल नाइट से कबल पाकिस्तानी फनकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर लाला अताउल्ला ईसा खेलवी का कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन दुबई में उनके चाहने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है। उन्होंने 92 न्यूज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और 92 न्यूज़ से अपने देरीना ताल्लुक का जिक्र भी किया। ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है थी कि मुझे खुदा न खास्ता मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ। अपने चाहने वालों के दरमियान आज हाजिर हुआ हूँ दुबई में। और इस जो अफवाह चली थी इसके बाद मेरा पहला शो है जो करने जा रहा हूँ आज। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ। सोशल मीडिया से बजाय इसके कम होने से मेरी चाहत और बढ़ेगी और यकीनन मेरे सुनने वाले आज ज़्यादा आएंगे, इसलिए कि हम अपनी आँखों से अपने हाथों से
देख सकें, टच कर सकें, सुन सकें, अपनी पसंद के गाने सुन सकें। गुलकारा आयमा बेग का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अताउल्ला ईसा खिलवी के साथ परफॉर्म करना उनके लिए फ़ख्र की बात है। वो सबके उस्ताद हैं और उनको सुनना इज़ नो लेस देन एन ऑनर फॉर मी, और उनके शो का एक हिस्सा बनना इज़ इवन अ ग्रेटर ऑनर। बाकी ये कि तैयारी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह होती है, और एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ, बिकॉज अपने लोग हैं तो अपनों में बीच में बैठ के गाना इज़ लाइक इट्स डिफरेंट। साथू ढोल मनावड़ाए, साथू यार मनावड़ाए, भावें सिर दी बाजी लग जावे, हो भावें सिर दी बाजी लग जावे। उमर जसवाल का कहना था कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने गुलकारों को सपोर्ट करना चाहिए और कसीर तादाद में आकर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरे जितने फैंस हैं यहाँ पे उनको कहूँगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। जब उनके शोज़ होते हैं तो उनको सुनने आया करें। यहाँ पे हम लोग आपके प्यार की वजह से आते हैं यहाँ पे, और आज स्पेशल ये है कि हम पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनके लिए ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं अपने शो में इन अ वेरी न्यू वे, इन अ वेरी यंग वे। सो आई एम एक्साइटेड टू सी यू देयर। अगर आप नुसरत के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ज़रूर आइएगा, बिकॉज़ हमारी पूरी कोशिश है कि हम जस्टिस कर सकें खान साहब के साथ, और कौन नुसरत का फ़ैन नहीं है। नन्हे गुलकार मुस्तफ़ा खान का इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान के अपने बड़े उस्तादों के साथ परफॉर्म करना उनके लिए फ़ख्र और एजाज़ की बात है। देखें, नर्वसनेस तो होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परफॉर्म कर रहे हो लाइव और थोड़ा सा वो बटरफ्लाई, मैंने आपके पेट में बटरफ्लाइज होती हैं ना, वो तो होती हैं, लेकिन मैं बहुत ग्लैड हूँ कि इतने पाकिस्तान के बड़े लेजेंड अताउल्ला जी के साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे फेवरेट उमर भाई के साथ, आयमा बेग के साथ, और या आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कुछ सरप्राइज़ भी है बीच में एक। जितनी हंसी मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊँ ना होश में मैं कभी, सानू एक पल चैन न आवे, सानू एक पल चैन न आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। रंगारंग म्यूजिकल नाइट आज दुबई में मनाई जाएगी, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों समेत दीगर कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद इन लेजेंडरी गुलकारों की आवाज़ के सहर में मुब्तला होने के लिए आ रही है। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर कुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट 92news HD.tv। देखते रहिए 92 News UK।